स्क्रीन आगे जाएगी। स्टार्टिंग। अच्छा, ये बच्ची है जो अपने आप को ढक के रहती है, ठीक है, कंबल से, और likes to cover herself always in a sheet or blanket. And same is the case with my son also. Always he wants to cover with the sheet, cover with the, ऐसे करके झांक के फिर देखिएगा कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना। It is also because of visual sensitivity. कुछ कुछ लाइट कर रहे होते हैं और कुछ स्लाइट सीख नहीं, लाइट नहीं कर रहे होते। स्क्रीन एक मिनट आप देखो। Ma'am, how can we improve eye contact? Because mostly we see that this is the major issues with the children on a spectrum, that they don't give proper eye contact. Although gradually with the time, with the age, कई जगह पे improvement होता है, but still, like I have experienced that with the strangers, especially with the strangers, people, human, my child avoids giving right eye contact. Now with the other things and familiar people, familiar things, he is very good. Even in his school, even his with his friends and family, he gives very good eye contact. But especially when some guests come, then he avoids. Right. तो आई कांटेक्ट अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो तो एक रीजन है ही है कि वेस्टिबुलर की वजह से थोड़ा होता है और आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो जब बच्चा, when the child is small, when we used to give one-on-one sessions, we work more on that. Any activity which you are doing or any instruction which you are giving, first make him give the eye contact. आवाज कम आ रही है। ओके, तो वो कैसे होगा? वो रीइंफोर्समेंट, अपने चेहरे को इतना रीइंफोर्सिंग बनाया जाता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। एक क्या आवाज आ रही है? अब आई? मैम मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। ओके, फिर मेरी क्यों नहीं? You are audible. You are audible. Earlier also. मैम मेरे को भी अच्छे से सुनाई दे रही है। Now everybody mute yourself. अच्छा, तो poor eye contact जो है, again somebody poor eye contact के लिए कभी म्यूट कर लो आप लोग प्लीज। चेहरे को कभी कहाँ से आवाज आ रही? चेहरे को कभी फोर्स करते कि आई कांटेक्ट दे, वो ऐसे चेहरा नहीं घुमाएंगे बच्चे का। आप खुद ही इतना एनफोर्समेंट अपने चेहरे में लाओ, इतना एक्साइटमेंट, इतना एंथुसियाज्म कि बच्चा देखे। ये तो हो गया शुरू में जब हम सेशंस ले रहे होते हैं तब। More of songs in between the activities, more of rhymes, more of anything. बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें हम वैसे वाली कोई चीज लेते हैं जिसमें ऐसे करके देख रहे होते हैं। कुछ भी एक्टिविटी जिसमें बच्चा एंजॉय कर रहा है और उसको देख रहा है तो उसको अपने आपके चेहरे से वो एक्टिविटी कनेक्ट हुई और वो आपको भी देखा, फिर उस एक्टिविटी को भी देखा। इस तरह से हम लोगों को एक्टिविटीज करानी होती है। ये हो गया शुरू में। और जब बच्चा बड़ा हो गया है, when he grows up, and then also if he's avoiding eye contact, you cannot force him to give eye contact. Instead, make yourself so much reinforcing. Give only instructions which the child likes the most, then only he will give eye contact. That is the limitation actually. When the child grows up and still he is not giving eye contact, and we have to work in the childhood in one-on-one sessions जब हमने काम नहीं किया है उसके साथ, तो वो डिफिकल्टी एंड तक रहेगी। जैसे कुछ बच्चों में वो कैमरा ही नहीं फेस करना चाहते,
या फिर वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके नीचे लिखना है, उसमें दिक्कत आ रहा है। दे हैव डिफिकल्टी कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड द कॉपी। ये उनके लिए दो चीजें हो गई। ये लिमिटेशंस बड़े होने पे आता है। अंतर, एनी डाउट? Ma'am, because the strangers, we can't expect that thing. Like if any guest comes, we cannot expect that that they give. Or, can you hear me? हाँ, now I'm getting. Yeah, I was saying कि जो आप points बता रहे हैं, ठीक है, being a family members and knowing people, we can expect कि yes वो अपने face में ऐसे expressions लाएं कि बच्चा बहुत अच्छे से eye contact दे, but especially with the guest or strangers, if anybody coming first time and very very like उनके साथ बच्चे का eye contact होने के फिर उतना possibility नहीं होगा, cause they will not put all those efforts and we can't expect those things from the strangers. Also, I like for the lightings and all, you're saying like with my child, he's 90% he gives eye contact, but yes, we face this challenge, especially when we were going somewhere, we had to complete his passport, and with in the studio he was not giving right to expressions or right eye contact to click the pic. So it took a lot of time for the photographer also to click a single pic. Because the moment he clicks, limitation. This is the limitations कि आप कैमरा फेस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. अब the second thing. But ma'am, that's what I mean. But they, you can guide us some points कि अगर जहाँ बहुत ही urgency है, then we have to have that. So what are the things we should precautions की जिससे कि वहां पे वो काम हो जाए. मतलब अगर बच्चे का फोटो लेना है तो एटलीस्ट फॉर अ सिंगल सेकंड वो इतना क्लिक कर दे कि पिक आ जाए. तो व्हाट आर द रीइंफोर्समेंट वी शुड डू, व्हाट आर द टेक्निक्स वी शुड यूज. कैमरा का पर्टिकुलर अगर कैमरा की बात करें तो शायद बहुत ज्यादा ब्राइट वो क्लिक जो हो रही है वो नहीं पसंद आ रही है, तो आप हम वत्सल के लिए करते हैं ये चीज. तो आप कोई भी चीज फॉर अ सेकंड उधर दिखा लीजिए रीइंफोर्समेंट, और उसी तरफ समय वो क्लिक कर ले. 1 मिनट को वो करेगा और फिर हटा लेगा अगर कैमरा फेसिंग में दिक्कत आ रहा है. अगर वो आई कांटेक्ट घर में आपके साथ दे रहा है और गेस्ट के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं देख रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो सही अपनी जगह सही है. उस केस में हम लोग सोशल स्टोरीज पे काम कर सकते हैं. इफ द चाइल्ड इज गिविंग आई कांटेक्ट अपने लोगों में और वहां पे नहीं दे रहा है, कैमरा फेसिंग में भी सोशल स्टोरी काम करेगी अगर उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है. देन सोशल स्टोरी इज अनदर बिग टॉपिक. उसमें 3-4 इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं जिसमें पॉजिटिव लिखते हैं और लास्ट में हम एक सेंटेंस रीइंफोर्समेंट वाला जोड़ते हैं. वो हम उसको अदर टाइम्स पे सुनाते हैं जिसकी वजह से जब वो आगे स्टूडियो जाएगा तो वो हाफ अ सेकेंड या 1 सेकेंड को देखेगा, पर वो तब देखेगा जब वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस छोटे से विद पिक आपने अदर टाइम्स में 1-2 महीने उसको सुनाए हो उनकी लैंग्वेज में. शॉर्ट स्टोरीज अनदर टॉपिक एक्चुअली. सोशल स्टोरीज, these are called social stories, जिसमें बच्चे मेरा yeah, like what is my observation is like अगर घर में भी कोई normal कोई gathering है and we want to click pic, और स्कूल में जो क्लास फोटोग्राफ होता है तो it takes time. घर में तो आपने gradually 3-4 पे क्लिक किए, उसमें से एक में आपको मिल जाएगा, बट स्कूल फोटोग्राफ में वो बच्चों को असेंबल करने में, उनकी पोजिशनिंग करने में टाइम लगता है, और फिर वो सारे बच्चों को उनको देखना है कि ये बच्चा भी एक्सप्रेशन दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है. सो उतना देर तक ही कैन नॉट वेट. अच्छा, तो आपका बच्चा सिर्फ सिंगल पिक्चर्स, सिंगल जब वो है और हम स्टूडियो में एक उसी के पिक्चर ले रहे हैं तो प्रॉब्लम कर रहा है, या भीड़ में? क्योंकि दिस इज अनदर प्रॉब्लम. Photos, with the photos, I feel it's not about the flashlight, because even with our cell phone when we don't use flashlight, his eyes, his pupils are so moving, so frequently he moves. It's bit difficult कि okay से चीज और चीज में हम क्लिक कर ले तब तक वो कहीं और देखने लग जाएंगे. वो इसीलिए हो रहा है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं. आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो से चीज और उसको बोल रहे हो, प्लीज आप आवाज मत करिए. आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो से चीज और आप उसी समय देखने को भी बोल रहे हो. वो 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो गए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ बात इसकी नहीं है कि वो कैमरा फेस नहीं कर रहा है या वो आई कांटेक्ट नहीं देना चाह रहा है. वो 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करने में दिक्कत कर रहा है बिकॉज ऑफ
विजुअल सेंसिटिविटी, हम सोशल स्टोरीज कर सकते हैं अंतरा उस केस में, आपके बच्चे के टाइप जिसमें बाकी जगह पे दे रहा है, सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं दे रहा है, स्टूडियो पे नहीं दे रहा है, और हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैमरा से। हो सकता है मोबाइल से लेने पे, जैसे वत्सल को मोबाइल से लेने पे प्रॉब्लम है, पर कई बार दूसरी उससे ले लेने देता है। वत्सल को सिंगल पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में कई लोग हैं तो नहीं ले रहा है। कई रीजंस हो सकते हैं इसके, बट आप सोशल स्टोरीज को हमें बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज करके बताना है। बिल्कुल, जैसे 4 लाइन का छोटा बच्चा है, इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं जानता है, तो आपको 4-5 लाइन में बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस की अंतर, आपका बेटे का जो नाम है उसको लेते हुए कि वी गो टू स्टूडियो समटाइम्स, वी फेस कैमरास, इट्स ओके, मम्मा वांट्स हिम टू, हिम नहीं, आई मीन क्या नाम है उसका, हिम, हाँ, हिम, लक्ष्य, हाँ, Lakshya, they want Lakshya to face the camera, uncle will click the photo or maybe or short, or mama will feel very happy when Lakshya will give a look for a second, he'll get a dairy milk or chocolate or kurkure whatever with a dairy milk pic. Okay. It's a kind of conditioning, it's a conditioning like when we go, okay. It's kind of conditioning, आप कितना अच्छा कंडीशन कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ 4 लाइन के इंस्ट्रक्शन लिख दिए और सुनाए जा रहे हो, ऐसे नहीं, उसके साथ में पिक भी हो, लाइक मम्मा की पिक हो उसमें, जिस स्टूडियो में मैम with the instructions and all he is very good, good in following commands, but फिर भी अंतरा पिक से okay. आपकी बात सुनेगा, वो इस इंस्ट्रक्शन को इधर से निकाल देगा, बेकार की बात। okay, I'll try. तो आप cause auditory I feel कि जितना अच्छे से कमांड वो एक बार में, जैसा ऑडिटरी जो एक होना चाहिए, he is not auditory learner for sure, he is more visual, cause now we are facing things in academic. No, but that is the वो thing of autism ना, उनका तो चीज ही वही है कि वो विजुअल लर्न। अब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन नहीं समझते हैं, पर जब आप विजुअली क्लियर कर दोगे तो वो बहुत ही अच्छा समझेंगे। सोचो कल एक पेरेंट्स है, वो तो देखो सविता, वो तो कह रही है कि जब पिक्चर दिखाओ तो ही लेके आता है इसको कुछ भी, तो इतना ज्यादा कंडीशनिंग कर दो। जैसे कि हम लोग जब शॉर्ट स्टोरीज, एक लेक्चर शॉर्ट स्टोरीज पे करने वाले हैं, वो पूरा एक टॉपिक, इसीलिए मैंने बोला है एक में तो एक बच्चे के एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसी भी एक ही चीज से नहीं होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। कभी स्ट्रक्चर करना होगा, कभी सोशल स्टोरी सुनाना होगा, कभी अब अगर वो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है कोई भी बच्चा, तो सोशल स्टोरी काम नहीं करेगी, ये भी आप लिख लो। आप फोर्स नहीं करोगे, फिर तो आप उसके साथ बहुत आई कांटेक्ट दे के खेलो। वो जो पीकअप वो गेम होता है ना, झा करना, खेलना, वो सब करो, उससे बहुत इम्प्रूव होता है। लेकिन उससे इम्प्रूव नहीं होगा कि हम लोग दूसरे डिसेबिलिटीज के सेशंस की तरह कैंडल जला के बैठ जाते हैं और कहते हैं बच्चा इधर देखे, उससे नहीं होगा। आपको डार्क रूम में बिल्कुल डार्क करके टॉर्च लेके ऐसे ऐसे लाइट टू एंड फ्रो घुमाइए, लेजर लाइट टेक्निक, यस, ठीक है, ये हो गया एक एक्टिविटी। या फिर एकदम डार्क रूम में एक बल्ब लगा लीजिए जिसमें डिफरेंट कलर की लाइट्स रोटेट हो रही है, आता है एक टॉय, उसको लगा लीजिए। अब एक चीज श्योर रहिएगा यहाँ पे, जब आप कोई टॉय या कोई भी ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जिसमें आप विजुअल सेंसिटिविटी पे काम कर रहे हैं, तो उसमें से म्यूजिक नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप ऑडिटरी पे काम कर रहे हैं तो विजुअल कट करना है, अगर विजुअल के काम कर रहे हैं तो ऑडिटरी कट करना है, फिर वो थेरेपी नहीं होगी, फिर वो गेम हो गया। फिर तो वो म्यूजिक एंजॉय करेगा, विजुअल सेंसिटिविटी गई, तो जो है ना, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। अगला टॉपिक जब भी सोशल स्टोरीज हो तो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट स्क्रीन तो फिर प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। हाँ Ma'am, we really request you, please let us know about these webinars well in advance so that you know, जैसे मुझे भी नहीं मालूम था, yesterday only I saw this message and I missed somehow. हाँ ठीक है, तो वो तो फर्स्ट लेक्चर निकला है, वो इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ऑल सैटरडे संडेज हम लोग ले रहे हैं। जिस सैटरडे संडेज में जिसका जो छूट गया है वो रिपीट में आ जाए। जैसे जया वेंकट, यू हैव लेफ्ट द यस्टरडे सेशन ना? Yes ma'am, I didn't attend yesterday. Next series of sessions, when we will continue for the next series, you can join for the first session, sensory. Okay. Please do share,
do share recordings or any, if you have any YouTube link or anywhere any recordings, so आप at यूज least करो, मतलब we'll definitely try. ओके ओके। तो वो YouTube लिंक आप लोग को कैसे भेजें? एक Okay, ma'am. ग्रुप बना लें या क्या करें? मेरे पास अब जैसे मैंने ऑडिटरी का आप लोग को बता रहे, मैं आई कैन शो यू द लाइव एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी सेंसिटिविटी इन व्हिच द चिल्ड्रन आर सीकिंग सो मच नॉइज एंड दे आर अवॉइडिंग नॉइज। लाइव एग्जांपल आप देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा। मैम आप अभी चैट में शेयर कर दें YouTube लिंक और रिकॉर्डिंग का, अगर कोई है आपका लिंक, सो एटलीस्ट वी कैन गो। और Yes, मेरी ma'am. तो अंतरा जो ये ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, और सविता जी मेरे जो अभी बड़े बच्चों के भी जो ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे टीचर्स यहीं पे हैं, उनसे आप पूछो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो कि मैंने पहले सोचा था कि ऑनलाइन काम ही नहीं करेगा इन बच्चों के साथ, तो इन लोग से पूछो कितना बढ़िया। अभी रिंकू, मोनिका सब है यहाँ पे, बहुत बढ़िया जा रहा है। तो अगर किसी को जानते हो जो ले सके तो बता देना। तो काफी चीजें ट्रेनिंग की तो कवर हो जाती हैं अंतरा। जैसे जब हम इन बिटवीन सेशन जब इन लोग की प्रॉब्लम देखते हैं तो उसी बीच में काफी टॉपिक कवर हो जाते हैं। अच्छा, हमारे विजुअल सेंसिटिविटी में आगे बढ़ते नहीं तो फिर रह ही जाएगा, फिर अगली बार एक्सटेंड होने का। पुअर डेप्थ और विड्थ एंड हाइट परसेप्शन अगर हो रहा है, प्रॉब्लम इन विजुअल सेंसिटिविटी, कितना विड्थ है कितना हाइट है। कई बार इतना सा गड्ढा है आगे और बच्चा इतना पैर फैला रहा है, या इतना है और इतना ही पैर फैला पा रहा है। ये पुअर डेप्थ और हाइट का परसेप्शन की वजह से है। थ्रोइंग और कैचिंग का प्रॉब्लम, सिमिलर लेटर्स में मिक्सिंग, आप लोग सोचते हो डिसलेक्सिया है, नहीं जी, ऑटिज्म में भी होता है। पी और डी सिमिलर लिख देते हैं, बी डी मिला देते हैं, बी लिखने बोलो डी लिख देंगे, ई लिख मतलब वो सिमिलर लेटर्स की मिक्सिंग करते हैं। लिटिल डिटेल्स पिक्चर्स में होते हैं, या मिसेस पिक्चर ऐसा होल देख रहे होते हैं, वो तो ऑटिज्म का कैरेक्टर ही है। तो ये सारी विजुअल सेंसिटिविटी। अब यहाँ भी इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उनको देखने में कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का पेरिफेरल विजन होता है, ऐसे देख के भी खटाखट मैच कर देते हैं, खटाखट बता देंगे, शो मी एप्पल, शो ये हु इज क्राइंग, शो मी बेदिंग, ऐसे देख के देख रहे हैं वो। आप फोर्स नहीं करेंगे कि इधर देख के करो, लेकिन कुछ चीजों में बचपन में हम नहीं मानते, हम उसको नो मानते हैं अगर वो बिना देखे कर रहा है, क्योंकि उसकी वो चीज सुधारना चाहते हैं। तो हम उस केस में रीइंफोर्समेंट इसीलिए बार बार बोलते हैं, ऑलवेज यूज रीइंफोर्समेंट। नहीं देख रहा है, देख रहा होता है तो अपनी एलिवेटेड कर दो टेबल को, टेबल पे नहीं देख रहा है टेबल को ऐसे खड़ा थोड़ा करो, एलिवेटेड ऐसे ऊपर करके चीजें रखो। नहीं देख रहा है पिक्चर्स को ऐसे प्रोट्रूड ऐसे ऊपर करते हुए रखो, शाइनी पिक्चर्स रखो। देखना इस तरह से टेबल पे देखना और खुद को देखने को सुधारना पड़ेगा। तो रीइंफोर्समेंट हमेशा, कई बार हम लोग यहाँ रख लेते थे, लोग फॉर सेकेंड इफ अ चाइल्ड लोग रीइंफोर्स करो, कभी कुछ और दिखा रहे हो। ये चीजें करनी पड़ेंगी ग्रेजुअली, डूइंग वन ऑन, जब आप एक्टिविटीज करा रहे हो बचपन में। बड़े होने पे अगर बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं आया है तो लिमिटेशन आ जाती है। मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरह हम बड़े होने पे ठीक कर पाएंगे इसे। अच्छा, डार्क ग्लासेस होना मतलब क्या एज, 8 अंतरा, थोड़ा तुम्हारी वॉइस क्रैक कुछ हुआ, फिर से बोलो। I was asking about the age. I mean, when we talk about बिलो 5 years एज में जब भी आप 1-on-1 दे रहे होते हैं, स्पेशली ABA थेरेपी, तो इसमें बहुत जल्दी चीजों पे हम लोग इम्प्रूव कर जाते हैं। 5 years भी ज्यादा हो गया, मतलब 2.5 या 1.5 या 2 पे आ रहा है तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हर चीज में धड़ाधड़। और उसके बाद अगर एकदम ही नहीं कभी कुछ थेरेपी हुआ और 5 years में बच्चा आ रहा है, काफी ऊटपटांग बिहेवियर्स लेके आ रहा है जो कि बिल्कुल ब्रेन में घुस गए, तो अब वो निकालना और फिर से उसको करना तो विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। 8 years में आ रहा है, मुश्किल, जो चीज बिल्कुल कभी नहीं कराई है और वो दिक्कत आ गई है तो वो चीज में नहीं कर पाएंगे। तब तक में 8 years एंड 7 years में आते आते तो ये चीज पता लग जाती है कि बच्चा मेन स्ट्रीम में जाने वाला है कि स्पेशल स्कूल में। ओके, ठीक है। बाकी क्वेरीज अंतरा बाद में सॉर्ट आउट करें थोड़ा। yes ma'am, yes, है ना। रूम की सेलेक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइट चेक कर लीजिए। कलर्स एंड पैटर्न्स जो चाइल्ड को सूट करते हैं वही लगाइए। कई बार आप अगर बहुत लाइनिंग स्क्वायर चेक लगा लिया आपने कर्टन में और बच्चे को उससे परेशानी हो रही है, आप सोच रहे हो टैंट्रम दिखा क्यों रहा है, व्हाई द चाइल्ड इज शोइंग टू मच टैंट्रम, व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट, बता नहीं पा रहा है और आपके कर्टन्स उसको परेशान कर रहे हैं। आप देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है।
प्रोवाइड वर्टिकल सरफेस फॉर वर्क। मेज पे नहीं देख रहे हैं, मेज को थोड़ा ऐसे एलिवेटेड कर दीजिए और ऊपर दीवार पे सिखाने लगिए, कोई चीज दिखाने लग जाइए। ऑलवेज प्रोवाइड विंडो गाइड फॉर रीडिंग। व्हाट इज विंडो गाइड? मान लीजिए आप बिफोर और आफ्टर सिखा रहे हैं, तो एक और विंडो ऊपर कॉपी पे एक बनाइए जिसमें एक नंबर लाइंस लिखा हो, जिसमें बिफोर आफ्टर की एरो लगी हो। मिसिंग नंबर्स ऊपर एक विंडो, इसको कहते हैं क्लू देना। क्लू देते हुए हमेशा नीचे का सिखाइए। आप सिखा रहे फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट मत सिखाइए। मान लीजिए आपको कैट सिखाना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आप बच्चे को ए लिखना है, तो आप ऊपर पहले कैट लिख दीजिए। आप क्लू दी, विंडो गाइड हमेशा दीजिए। वो एडिशन में भी ऊपर नंबर्स लिख दीजिए, तब नीचे, फिर नीचे धीरे से विंडो गाइड को फेड कर देंगे। जैसे स्काई इज ब्लू इन कलर, बच्चे को फिल करना है ब्लू, तो डायरेक्ट मत सिखाइए कि आप ऊपर लिखिए ब्लू ब्लैक ग्रीन, क्योंकि चूज फ्रॉम हियर वो दीजिए ब्लू। बोर्ड से कॉपी करना डिक्रीज करिए। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बच्चे के, प्लीज सब लोग म्यूट कर लें, आवाज आ रही। बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत सारे मेन स्ट्रीम वाले बच्चों को हो रही है जो हाई फंक्शनिंग है। बहुत सब लोग यही कर रहे हैं कि वो करता नहीं, वो पीछे रह जा रहा है, क्योंकि उसमें लिख देती टीचर आके ओपन योर बुक, कम टू पेज, ओपन पेज 1 and 5, रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। 3 इंस्ट्रक्शन लिख दिया, बच्चा गोल। ऊपर का पढ़ ही नहीं पाया, ऊपर का पढ़े कि नीचे पढ़े, कॉपी में देखे कि ऊपर देखे, टीचर को देखे कि आपको देखे कि बगल में जो बैठा उसको देखे, बहुत मुश्किल। कॉपी करके बोर्ड से उतारना क्लास में बंद करवा दीजिए, बल्कि उस चीज को उसका जो फैसिलिटेटर है वो बगल में कॉपी में लिख दे, देखो बेटा यहीं से कॉपी करना है, ये देखो आसान हो जाएगा। कुछ चीजों में आपको स्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा मेन स्ट्रीम स्कूल को। colored overlays across page for reading, तो open your book पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में कुछ रेड कलर का मार्क लगा। ओपन योर बुक पेज नंबर 6 में कुछ ब्लू कलर का लगा, उस पे 6 लिखा हो, कुछ अलग से हाईलाइट करिए जिससे कि बच्चा निकाल सके। बच्चों के कवर, कॉपी के कवर्स को ब्लू कवर, रेड कलर की हिंदी कॉपी, ब्लू कलर की इंग्लिश कॉपी, ऐसे करके कलर की क्लूज दे दीजिए। विजुअल लर्नर है ना, बहुत आसानी से निकालेंगे, एक बार में इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। वो टेक आउट योर हिंदी कॉपीज, हिंदी ग्रीन कलर की कॉपी निकल आई, भले वो जानता होगा कि हिंदी कॉपी कौन सी है। टेक्टाइल क्यूज फॉर कलरिंग दीजिए आप, टच में भी आप वो डाल सकते हैं। रफ रफ पेज, कवर पेज है, हिंदी की कॉपी है, गया वाइट लाइट गई। अब उसका मेरा मोबाइल से